Good afternoon, everybody who's here, my colleagues, seniors, students, and juniors. So it's been a long time I have ever attended any conference, and very graciously, but in the end, Dr. Bhatia and Naresh called me, and they wanted me to come and contribute something which I can contribute. So I'm here. So Lord has been, we are talking about love, we are talking about grief, we are talking about how to change psychiatry, we are talking about how to contribute in psychiatry and psychology. And I think my contribution is way forward or the part of the chain. So I would just want all of you not to just hear as a bystanders or just an audience who are talking amongst themselves on their phones, laughing a bit here and there. How about we all contribute in this presentation or in this talk? And why I am saying that, if you have a paper and a pen around you or with you, can you take that out? And if you do not have that, how about we all have a mobile phones और उसमें एक notepad होता है. अगर वो सब हम निकाल लें, तो we can have very interactive way of knowing oneself and listening to what little I have to say to you. Are you all on board with me? Not the people who are sitting in the front, people who are sitting at the back, the students especially. All of you are on board? Please raise your hands if you are on board with me. Are you interested to listen? If you're not interested, please, you can leave. It's okay. But if you're interested, just be interested for just 20 minutes. So my topic is why love matters. Now, this has been a journey for me. You know, I have been a psychiatrist for a long time, a professor, live in my own cocoon, do things what I like to do. And this has been my journey, an ongoing journey of my life, to have certain questions and have quest for that. So I've been to many countries, met many gurus and teachers and scientists to figure it out within me, what is this all business about, you know, and how can I come close to my own self-reflection and what contribution I can give to the community, not only psychiatric community, but the community in general. So I am just wondering that, you know, there are few phrases I'm going to raise here, and I want you to pay attention and ask yourself, what is this? What is love for you? I'm not asking what is love for the other person. What is love for your partner? What is love for your friend or your colleague or your children or your parents? It's love for you. So how would you like to define it, this word love? And how would you explain this definition of love for yourself? यानी कि आप मोहब्बत की definition को अपने लिए कैसे explain करते हैं? पहले define करते हैं और फिर explain करते हैं. क्या ये एक emotion है? क्या ये एक feeling है आपके लिए? क्या ये सिर्फ एक मर्द और औरत के दरमियान exist करती है? या ये it is more than that? और it is a verb. क्या आपके लिए मोहब्बत एक एक्शन का नाम है, या इमोशन और एक्शन दोनों इसमें शामिल होते हैं आपके लिए? आपके हाथ में कागज़ और पेन है या आपका नोटपैड है? प्लीज़ लिखते जाइए कि आपके लिए इमोशन है तो लिख दें इमोशन, वर्ब है तो लिख दीजिए वर्ब, और अगर दोनों हैं तो प्लीज़ लिख दीजिए कि दोनों है. क्या ये एक फ्रीक्वेंसी है? नाउ द वर्ल्ड इज़ So everything which wisdom has been here for ages and ages and ages in all mythologies is now being supported by science. So especially the quantum physics. Quantum physics says कि every living being, हर जानदार शय जो इस दुनिया में है, humans और non-humans और more than humans, वो एक frequency है. क्यों फ्रीक्वेंसी है? वो ज़िंदा इसलिए है क्योंकि वो वाइब्रेट करते हैं, और जो भी चीज़ वाइब्रेट करती है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, और लव की भी एक फ्रीक्वेंसी है. तो क्या
लव आपके लिए एक फ्रीक्वेंसी है और डेफिनेटली ये फ्रीक्वेंसी है तो एक हायर फ्रीक्वेंसी है। क्या कहीं गलती से आप उस फ्रीक्वेंसी में फॉल करते हैं, या कभी आप उस फ्रीक्वेंसी में एंटर हुए थोड़ी देर के लिए, भले स्टे नहीं कर सके, नीचे आ गए? क्या ये ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है आपके लिए? इज़ इट अ वे ऑफ लाइफ? लव कैन बी अ वे ऑफ लाइफ, बट इज़ इट अ वे ऑफ लाइफ फॉर यू? दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट टू लुक इनटू। ये आज की जो भी मैं यहाँ कहने की कोशिश करूँगी, ये आपके लिए है। ये किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है, किसी गरीबों के लिए नहीं है, किसी स्किज़ोफ्रेनिक्स के लिए नहीं है, ये मेरे और आपके लिए है, क्योंकि हम सब के अंदर एक स्किज़ोफ्रेनिक मरीज़ मौजूद है। हम सब डिप्रेशन के मारे हैं, हम सब मोहब्बत के मारे हैं, हम सब के अंदर एक ग्रीफ है, एंड वी ऑल आर व्हाट हु एंड हूएवर वी आर टॉकिंग अबाउट। हम सबको कभी ना कभी पैनिक अटैक हुआ है, हम सबको डिप्रेशन का छोटा या बड़ा अटैक हुआ है, हम सब डिल्यूजनल है अपने बारे में और अपनी चीज़ों के बारे में। अभी यहाँ बैठे हुए बहुत अच्छी डॉक्टर हरीश ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जब हमें बोलना आ जाता है तो हम सुनना बंद कर देते हैं। एंड आई जस्ट वॉज लाइक सो ट्रू, सो ट्रू। यू नो, कितनी अच्छी उसने बात कही कि हम जब बोलने लगते हैं तो सुनते नहीं हैं, लेकिन आज हम सुनने की कोशिश करते हैं। आप मुझे ना सुनिए प्लीज़, अपने आप को सुनिए while I am talking। और क्या मोहब्बत, क्या लव इज़ अ मीडियम टू लिव इन द यूनिवर्स? द अर्थ प्लैनेट हैज़ अ मीडियम टू लिव and be alive is breath. But they say in the soul world, the medium to live is love. So the spiritual sciences now have started to work and research on it कि अगर love soul world का medium to live है तो यहाँ इतना important क्यों है? Why it is so important in this world for us to love and spread love, and then what is love? मैंने कुछ ऐसे ही देखना शुरू किया कि आम लोगों के लिए लव क्या है, ख़ास लोगों के लिए लव क्या है, उन लोगों के लिए जिन्होंने लव के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, उनके लिए मोहब्बत क्या है। सो आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू डेफिनेशंस और अंडरस्टैंडिंग्स, एंड देन उसके साथ साथ मैं आपको कहती जाऊंगी, अपने कागज़ पेन पे आपने अपनी डेफिनेशन देखती जाने हैं। विकीपीडिया मैंने देखा तो विकीपीडिया कहता है कि लव encompasses a range of strong and positive emotional and mental states, from the most sublime virtue or good habits to the deepest interpersonal affection to the simple pleasures। आप खाना खा रहे हैं और सिर्फ खाना खा रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं, वो मोहब्बत का एक्ट है। आप यहाँ बैठकर गौर कर रहे हैं, ये एक्ट ऑफ लव है। आप यहाँ आए हैं सिर्फ कंट्रीब्यूशन के लिए, वैलिडेशन के लिए नहीं आए। दिस इज़ एन एक्ट ऑफ लव। आप यहाँ से उठ के चले जाते हैं क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आप इस वक्त कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आप हिंड्रेंस हैं, आप दूसरों में नेगेटिव एनर्जी फैला रहे हैं, तो आपका उठ के जाना इज़ एन एक्ट ऑफ लव। सो कैन यू जस्ट आस्क योर सेल्फ दैट राइट नाउ, राइट हियर, आर यू सिटिंग हियर एज एन एक्ट ऑफ लव, और यू आर सिटिंग हेयर बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर वैलिडेशन कि अभी डॉक्टर शैला आई हैं, हम उनके सामने उठ के कैसे चले जाएं, ये तो खातून हैं। एक डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी साड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं, सो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ अ वुमन इज़ ऑलवेज देयर। सो आई एम जस्ट वंडरिंग कि राइट नाउ यू हियर बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, or because of I'm standing here, or you're afraid or feeling ashamed, how are we going to get out of this bullshit with this woman is saying? Just ask yourself. Close your eyes for few seconds please and ask yourself, and you don't need to tell any one of us, it's between you and yourself. Can you do that? And then can you write it down? वो तमाम लोग जो पीछे बैठे हैं पीठ करके मेरी तरफ, अगर मुँह ही कर लें तो मुझे लगेगा कि आप एक्ट ऑफ लव में हैं, और अगर पीठ ही करनी है तो फिर आप भले चले जाइए, तो मुझे लगेगा कि अब भी आप एक्ट ऑफ लव में हैं, बिकॉज यू आर लीविंग दिस प्लेस एंड नॉट डिस्ट्रैक्टिंग अदर पीपल्स और गिविंग देम प्लेस टू डू द सेम। अब हम मोहब्बत रूमी के बगैर तो नहीं डिस्कस कर सकते, ठीक है ना? तो रूमी ये कहते हैं कि लव इज़ ओनली अ थिंग बाय विच पीपल आर यूनाइटेड विद गॉड। He accepts each and every love because the union of each love leads to God. And he describes all things from his heart. He declares that everything in creation derives from God. Now the question is here, God कोई entity है या कोई frequency है या universe है? क्या God सब कुछ कोई बाहर कोई entity बैठी है, या हम सब
खुदा का ज़िल हैं तो हमारे अंदर एक खुदा है हर वक्त हर लम्हे। क्या हम उससे कनेक्ट करते हैं? क्या हमारी सोल खुदा का हिस्सा नहीं है, यूनिवर्सल प्लान का हिस्सा नहीं है? क्या हमारा होना इट्स सेल्फ इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ लव? और अगर वो एक्ट ऑफ लव है तो क्या जब मैं अपने आप को शेमलेसली, रूथलेसली नेगेटिव एनर्जी में डालती हूँ तो क्या वो एक्ट ऑफ लव के बगैर कोई चीज़ नहीं है? इज़न्ट इट अगेंस्ट एक्ट ऑफ लव? जस्ट पे अटेंशन टू दैट, क्योंकि हमें बहुत आदत है एक एंटिटी को सब कुछ दे देना। जैसे कि एक डॉक्टर साहब ने कहा कि जी किस्मत ख़राब है, बस किस्मत में ये हो गया। बट नो, इफ़ वी हैव अ लव, if we are part of God, then God is within us and we are gods in our way. So how much are we in love with ourselves and all what we are doing and want to do and think and feel and look into? आइंस्टाइन, अब हम आइंस्टाइन को भी नहीं भूल सकते क्योंकि हम तो साइंस के थ्रू प्रूफ कर रहे हैं ना मोहब्बत को। वो कहता है कि लव एक लाइट है, एक रोशनी है, that enlightens those who give and receive it. ये सिर्फ उन लोगों को enlighten करती है, उनके अंदर उनकी रोशनी को जगाती है जो मोहब्बत देने और मोहब्बत लेने के लिए तैयार हैं। जो मोहब्बत देना और लेना वाली फ्रीक्वेंसी में नहीं है, उनके लिए मोहब्बत नहीं है। लव वो ग्रेविटी है, वो फोर्स है, वो अट्रैक्शन है जो एक दूसरे की तरफ हमें खींचती है। Because it makes some people feel attracted to others. Love is power because it multiplies the best we have. वो love वो ऐसी ताकत है जो हमारे अंदर के खुदाई जो सिफ़ात हैं उनको मल्टीप्लाई करती है। और वो कैसे मल्टीप्लाई करती है? We'll talk about that. And allows humanity not to be extinguished. वो तमाम लोग जिनका जिक्र हो रहा है, डॉक्टर लगारी ने किया, डॉक्टर मुअद्दत ने किया, डॉक्टर शहाब ने किया, एंड आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू टॉक, और हॉल बी में भी जिक्र हो रहा है। वो लोग जो एक्सटिंग्विश नहीं होते वो कौन है? चाहे अपनी ज़िंदगी में उनको किसी ने ना माना हो, वो है जो मोहब्बत के बारे में या मोहब्बत जीते हैं या मोहब्बत करते हैं। और वो मोहब्बत वो है जो वो देने के लिए तैयार है, समथिंग विच दे आर विलिंग टू गिव विदाउट wanting to have it in return. In their blind selfishness, love unfolds and reveals. और हम कितने भी अंधे हों, कितने भी अपनी ज़ात से अंधे हों, कुछ भी हमने अटेन कर लिया, अगर मोहब्बत नहीं अटेन की तो एक सुई की तरह कोई चीज़ छुपती रहती है, एक बेचैनी हमें खाती रहती है। हम पैसे वाले हों, हम हसीन हों, हम स्मार्ट हों, हम मशहूर हों, हम पॉलिटिशियंस हों, हम फ्यूडल्स हों, हम पावरफुल हों, व्हाट्सएवर, वो जो कमी है ना मोहब्बत की, वो हमें खाती रहती है, एक नासूर की तरह खाती रहती है। और उससे वो कह रहे हैं कि एक ब्लाइंड किस्म की सेल्फिशनेस है जो लव से ना कनेक्ट होने की सूरत में हमें मिलती है। सो आर वी इन टू लव, आर वी इन लव विद आर सेल्व्स और वी आर नॉट इन लव विद आर सेल्व्स? आई थिंक दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तमाम चीज़ें जो हम बाहर लोगों के लिए कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम सदियों से बातें कर रहे हैं और शायद सदियों तक सिर्फ इसलिए करते रहेंगे बिकॉज हम अपने से तो मोहब्बत करते ही नहीं, अपने आप को तो कभी देखते ही नहीं। अपने को कब मोहब्बत दी, अपने ट्रॉमास पे कब वर्क किया है? वी आर साइकियाट्रिस्ट, वी आर साइकोथेरेपिस्ट, वी आर साइकोलॉजिस्ट हियर। व्हेन डिड वी एक्चुअली लुक इनटू आवर ओन ट्रॉमास? व्हेन this happened and how often this happened? How often एक साइकियाट्रिस्ट ने एक और थेरेपिस्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा, you know what, I think I have a trauma. I think I am unable to love. I think this is not working for me. You know, I'm great, but it's not working for me. ये मेरे अंदर नहीं उतर रहा। कब और कैसे, क्या हम ये कर सकते हैं? ये वल्नरेबिलिटी जो है मोहब्बत में, क्या है हमारे पास, या हमने सिर्फ दूसरों के लिए रखी हुई है? और फिर हाफिज़ कहते हैं, I wish I could show you. मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको दिखा सकूं। When you are lonely, जब आप तन्हा हैं और अंधेरे में हैं, the astonishing light of your own being, आपकी अपनी ज़ात की एक खूबसूरत बेअंदाज़ा आँखों को चुंधियाने वाली एक रोशनी है आपके अंदर। You have taken root in the beloved, and the beloved is not the other person. The beloved is you yourself. रूमी का जो सारा कॉन्सेप्ट मोहब्बत का है, वो अगर हमने देखा हो, या हम जैसे कि डॉक्टर लगारी ने कहा, क्वींस ऑफ फोकलोर स्टोरीज़ जो हैं, वो विमेन जो हैं। जब मैं फ़ारसी सीख रही थी तो माई टीचर सेड वन डे,
एंड ही सेड कि जो सारा मसला है ना मोहब्बत का, वो माशूक बनने में नहीं है, वो आशिक बनने में है। क्या हम सब आशिक बनने के लिए तैयार हैं? और इसका ताल्लुक़ किसी जेंडर से नहीं है कि औरतें माशूक ही हो सकती हैं और मर्द ही आशिक हो सकते हैं। आशिक बनने का मतलब है क्या मैं अपने आप से इतनी मोहब्बत कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि मैं अपने गंद को, अपनी काले अंधेरे को देख सकूँ और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकूं। Is it a possibility or not? And if this is not a possibility, then we will be living in darkness for all of our life and unhappily. So Buddha says कि love as well as everything is governed by the law of impermanence. हर चीज़ जो आज इस लम्हे हो रहा है वो कल नहीं रहेगा या अगले मिनटों में नहीं रहेगा। तो लॉ ऑफ इम्परमानेंस, द अनसर्टेनिटी, मोहब्बत उस अनसर्टेनिटी के साथ रहने का, यानी कि कुछ भी हो सकता है कि साथ रहने का नाम है। क्या हमारे अंदर वो एनर्जी है कि हम कुछ भी बदल जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, आज ये है और कल वो नहीं रहेगा, जो कल है वो आज हमारे पास नहीं है, जो कल होने वाला है वो परसों नहीं होगा। क्या मैं उस अनसर्टेनिटी के साथ रह सकती हूँ? क्या ये वल्नरेबिलिटी मुझे कबूल है? तो मैं ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हूँ। अगर वो वल्नरेबिलिटी हमें कबूल नहीं है, हम स्टैटिक रहना चाहते हैं, हम ग्रो नहीं करना चाहते, तो हम मोहब्बत नहीं कर सकते। मोहब्बत नहीं कर रहे, किसी से भी कर रहे हो, आप कल्चर से कर रहे हों, आप अपने माशूक या माशूका से कर रहे हों, इट डजंट रियली मैटर, बच्चों से कर रहे हों, इट डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज वी आर नॉट डेल्व इनटू द इम्परमानेंस of the universe. Gary Zukav is a very famous author who has written a lot on spirituality. He is still alive in America. और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। वो spirituality के बारे में कहते हैं कि humans are permanently, मैंने primarily मेरी ऐनक नहीं है तो मैं यहाँ से देखूँगी, primarily spiritual beings living in the material world. Our souls have incarnated in order to learn lessons and fulfill a mission and ultimately to evolve. गैरी कहते हैं कि हमारा जो प्राइम मकसद है बार बार दुनिया में आने का, वो ये है कि हम इवॉल्व हों। और इवॉल्व कैसे हों? क्या एवोल्यूशन चाहिए? मैं एक साइकियाट्रिस्ट हो गई, साइकोथेरेपिस्ट हो गई, पढ़ लिख लिया, जान गई सब कुछ, अब मुझे क्या इवॉल्व होना है? मैं लोगों को हील कर रही हूँ, उनको ठीक कर रही हूँ? नो। लेकिन वो जो हुक है ना, वो अपने से ना मोहब्बत करने की जो हुक है, वो सेल्फिश होने की जो हुक है, वो वैलिडेशन की जो हुक है, क्या मैं उससे जान छुड़ा सकती हूँ? क्या मैं सिर्फ कंट्रीब्यूशन और अपनी कंट्रीब्यूशन के साथ रह सकती हूँ? क्या मैं ये जान सकती हूँ कि मोहब्बत देना और मोहब्बत करना विदाउट दी क्या कहते हैं, विदाउट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या ये पॉसिबिलिटी है मेरे लिए? क्या मैं सांस ले सकती हूँ इम्परमानेंस में? क्या मैं सांस ले सकती हूँ वल्नरेबिलिटी में? क्या मैं अपने से छोटा सा भी सच बोल सकती हूँ? ये नहीं बोल सकती है। और अगर नहीं बोल सकती तो डेफिनेटली आई एम कैन बी एनीबडी बट नॉट इन द जर्नी ऑफ एवोल्यूशन। मैं एक छोटा सा हल्का सा एक म्यूज़िक प्ले करूँगी एंड आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आइज एंड सी व्हाट दिस म्यूज़िक इज़ टेलिंग यू। आपके नेबर को क्या कह रहा है इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। आपको वो क्या कह रहा है, इट्स जस्ट फ्यू सेकेंड्स। Just pay attention to your heart. Just pay attention to your breath. Pay attention to what has happened. If something has happened to you or nothing has happened to you within you, if it has impacted you in a way or if it hasn't impacted you, just pay attention. Okay. तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इतना कुछ मोहब्बत के बारे में मौजूद है, पता है, हम हर वक्त बातें करते हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो हो क्या रहा है? जैसे कि इसके बारे में मुसलसल गुफ्तगू हो रही है कि जब हमारा जो बायोग्राफी है फॉर माई सेल्फ, इट रियली इम्पैक्ट्स मी हु आई एम और हाउ आई स्टार्ट कंडक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग एंड कम्यूटिंग इन लाइफ। मैं कहाँ पैदा हुई, किस दिन पैदा हुई, किस वक्त पैदा हुई, मेरे पेरेंट्स कौन थे और उनके क्या मसाइल थे,
वूम में उनके क्या मसाइल थे, वूम के बाहर आके क्या मसाइल हुए, किस नर्स ने, किस डॉक्टर ने मुझे रिसीव किया, क्या मेरे फिज़िकल कंडीशन थी, क्या इमोशनल थी, क्या सोशल थी, क्या फाइनेंशियल कंडीशंस थी जिनमें मैं पैदा हुई, उनका मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट है. दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू विच इम्पैक्ट्स अस आवर कैपेसिटी टू लव, लव टू रिसीव लव एंड टू गिव लव. फिर वो एनेक्डोट्स जो मुझे मेरे बारे में बताए गए, जैसे बताते हैं कि वो बचपन में तुम बड़े ज़िद्दी थे, बहुत अच्छे थे, बच्चे थे, तुम सबका कहना मानते थे, तुम किसी का कहना नहीं मानती थी, तुम यूँ था, तुम वो था. वो एनेक्डोट्स हमें वो वैलिडेशन या तो देते हैं या हमें इनवैलिडेट कर देते हैं, और हम मोहब्बत लेने देने की कैपेसिटी से कहीं दूर जा सकते हैं या करीब आ जाते हैं. फिर वो टेम्परामेंट जिसके साथ हम पैदा हुए, जो बच्चे डिफ़िकल्ट टेम्परामेंट से पैदा होते हैं, हाउ मच ऑफ लव दे नेवर रिसीव, एंड दैट्स समथिंग आयरॉनिक. जैसे कि डॉक्टर शाहाब ने कहा कि फिर उनके साथ एक विशियस सर्कल ऑफ अब्यूज़ एंटर हो जाता है. डिफ़िकल्ट पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जिनको कोई अपना पर्सनालिटी इशू है, वो पेरेंट्स, मदर्स जो डिप्रेस थी, फादर्स जो डिप्रेस थे, जिनके फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, इमोशनल इश्यूज़ थे, नेबरहुड इश्यूज़ थे, सोशल इश्यूज़ थे. व्हाट इज़ देयर कैपेसिटी टू गिव द सेफ्टी, द सेफ टच, द आइज़, द वॉइस, the handling, was the handling all right, or it was based on some kind of depression or some kind of annihilation of the parents to themselves. थीम्स क्या है हमारे घर में, उस घर में जहाँ हम पैदा हुए वहाँ पे प्राइड और रिजेक्शन के थीम्स क्या हैं, कब हम रिजेक्ट हो जाते हैं, कब हम एक्सेप्ट होते हैं, हमारे नेबरहुड के क्या थीम्स हैं, हमारा स्कूल जिस पे हम डाले गए उधर क्या थीम ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन थे, हमारे मोहल्ले के क्या थीम थे, हमारे गाँव के क्या थीम थे, हमें क्या बताया गया कि कैसे एक्सेप्ट होगे, बड़े आदमी बनोगे, बड़ी औरत बनोगे, बहुत सारे बच्चे पैदा करोगी, बहुत सारे पैसे कमाओगी, सेक्सुअल होगी, खूबसूरत होगी, बदसूरत होगी, काली होगी, गोरी होगी. वो क्या थीम्स है जो मुझे मोहब्बत करने से रोकते हैं या मोहब्बत की तरफ लेके जाते हैं. और ये करने के लिए हमको अपनी स्टोरीज़ को, अपने आप को जानने की ज़रूरत होती है. हमें एक्सकवेट करना पड़ता है, खोदना पड़ता है अपने अंदर. अगर हम अपने आप को खोदते नहीं हैं तो मोहब्बत जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती. इट कैन हैपन एनीथिंग but not love, because love starts with going to the painful shit of our own selves. हमको अपने साइकोलॉजिकल और अपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि हमें मोहब्बत मिलने और ना मिलने की सूरत में हुए हैं उसको देखना होता है, और वहाँ से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन और अपने आप को बदलने की जर्नी करनी होती है. And what is the unfinished baby? The unfinished baby is the one who never, or maybe very barely received love. A baby who was programmed to be obedient. A baby who was programmed to accept, not to ask questions, not to generate questions, not to find anything, but just accept what has been told. The unfinished baby is many systems. इनपुट इज़ इन द बेबी. बेबी के अंदर दूसरों की बातें हैं, दूसरों की कहानियाँ हैं, दूसरों के किस्से हैं, दूसरों के ट्रॉमास हैं, जिनको वो जनरेशनल और फैमिलियल ट्रॉमास के साथ जीता चला जाता है और अपने आप को ढूंढने की आहिस्ता आहिस्ता सलाहियत खो देता है. मैं हमेशा कहती हूँ अपने पेशेंट्स को और मेरे थेरेपी में जो क्लाइंट्स आते हैं कि बहुत दफ़ा हमको बड़े मेथोडिकली हमको ट्रेन किया जाता है कि हम अपनी आवाज़ ना सुने. अगर बच्चे को भूख लगी है और वो रो रहा है तो अगर माँ को लगता है कि ये सोने का टाइम होना चाहिए तो कहती नहीं, भूख नहीं लगी, सोना है. और अगर सोने का टाइम है और वो सोने के लिए रो रहा है तो नहीं, ये तो खाने का टाइम है और ये नहाने का टाइम है. तो वो जो इंटरनल वॉइस है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, वो वॉइस जो हमें मोहब्बत की तरफ लेके जाती है, एंड दैट वॉइस स्टार्ट्स टू शट डाउन. और जब वो शट डाउन होने लगती है तो फिर हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत करने और लेने और देने की कैपेसिटी से मावरा होने लगते हैं. मुझे ये कहा गया है कि मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, तो फ्यू थिंग्स आई माइट हैव टू स्किप
एक किताब है सेलेस्टीन प्रोफेसी बाय जेम्स रेडफील्ड. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड इट, बट फॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में मौजूद है, लिबर्टी बुक शॉप्स पे मिलती है. जेम्स रेडफील्ड कहता है कि इंसान के 4 या 5 ड्रामा स्टाइल्स होते हैं, और वो ड्रामा स्टाइल इसलिए होते हैं कि हमने जब दूसरे से एनर्जी लेनी होती है तो उस एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है. अगर हमारे पेरेंट्स इंटेरोगेटर हैं, बहुत सवाल करने वाले क्रिटिकल पेरेंट्स हैं, तो हम अलूफ़ एज अ चाइल्ड हो जाते हैं. जब हम इंटिमिडेटर होते हैं, और इंटिमिडेटर अगर पेरेंट्स इंटिमिडेटर हैं, अग्रेसिव हैं, वो आपसे एज अ चाइल्ड वो एनर्जी आपसे गुस्से करके ले रहे हैं, मार पीट करके कह रहे हैं, तो वो जो बच्चा है वो पुअर मी बच्चा बन जाएगा. वो एनर्जी अब दूसरों से कैसे लेगा? वो ऐसे लेगा, हाय मैं मर गई, हाय मैं लुट गई. दे गो इनटू द विक्टिमहुड और एक्सट्रीम नीड ऑफ वैलिडेशन. वो एक ड्रामा क्रिएट करेंगे अराउंड. फिर वो जो पेरेंट पुअर मी होगा उसकी औलाद इंटिमिडेटर हो जाएगी, और जो पेरेंट अलूफ़ है, जो एनर्जी देने को ही तैयार नहीं है किसी को, अपनी औलाद को, उसके बच्चे अपने माँ बाप से एनर्जी लेने के लिए सवाल करेंगे, क्रिटिकल हो जाएंगे, जजमेंटल हो जाएंगे. और माँ की अलग ड्रामा है, बाप का अलग ड्रामा है, और कभी कभी दोनों के ड्रामा मिलके एक से भी हो सकते हैं, चीज़ें एम्पलीफाई हो जाती हैं और हमारे अंदर एक साथ चारों ड्रामास चल रहे होते हैं. ऑल वी नीड टू डू इज़ फाइंड आउट आवर ड्रामास एंड द मोमेंट, और वो लम्हा जब हम अवेयर हो जाते हैं कि मेरा ड्रामा क्या है, वो लम्हा हम मोहब्बत की जर्नी में, मोहब्बत पा लेने की, अपने आप को देने की जर्नी में एंटर हो जाते हैं. Stephen Porges is a neurophysiologist and a psychiatrist who had done a lot of research on polyvagal theory. वो ये कहते हैं कि वेगस नर्व जो है वो हमारी सबसे बड़ी बॉडी की नर्व है, जो कि हमें बताती है कि जब हम थ्रेट में होते हैं, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल, फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है फाइट, फ्लाइट या फ्रीज़. तो जो हमारे पेट के नीचे का हिस्सा वेगस नर्व का है वो पुरानी वेगस नर्व है जो डीमाइलिनेटेड है, और वो ट्रॉमा जब हमें किसी भी किस्म का थ्रेट आता है तो वो हमको फ्रीज कर देती है, हम शट डाउन में चले जाते हैं अगर वो एक्टिवेट हो गई है. लेकिन जो हमारे पेट से ऊपर की वेगस नर्व है जो कि माइलिनेटेड है, वो जब एक्टिवेट होती है, वो ब्रेन टू हार्ट का डायरेक्ट कनेक्शन है. वो फेशियल एक्सप्रेशंस देखती है, वो वॉइस की टोन देखती है, वो आंखें देखती है, और फिर डिसाइड करती है कि ये थ्रेट जेन्युइन है या इनजेन्युइन है. एंड दैट्स व्हाट, एंड हमारा काम उस वेगस नर्व को समझना है, और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शट डाउन मैकेनिज़्म है, हम उसको कैसे अवेयर होके let go करें. That's the work of the trauma, Stephen says, and that's what called the trauma work, which starts with the body and with the breath and the stimulation of the vagus nerve. I'm going it fast because I understand that I want something for you people to do it. और ये हम अपनी वेगस नर्व को रीप्रोग्राम कब कर सकते हैं? जब हम सेफ फील करते हैं. अगर आज अभी इस वक्त आप सेफ फील कर रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस देगी और कुछ बदल जाएगा आपके अंदर. अगर हम सेफ फील करते हैं तो हम प्ले करते हैं, तब हम प्लेफुल हो जाते हैं. प्ले डज नॉट मीन कि हम 4 आदमी बैठ के किसी 5वें के ऊपर हंसी मजाक करें. दैट्स नॉट प्ले. आई एम सॉरी. आई थिंक ये हमारा फेवरेट मशगला है, और आई एम सॉरी मेन आर मोस्टली इन्वॉल्व इन इट, कि 4 बैठेंगे और 5वें को वो ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर बना देंगे. वो प्ले नहीं है, ठीक है? वो बुली है. प्ले इज़ जस्ट बीइंग योरसेल्फ, बीइंग वल्नरेबल. डू वॉट एवर यू फील लाइक डूइंग. आपको डांस करना है डांस करें, हंसना है हंसिए, गाना है गाइए, रोना है रोइए, सैड होना है तो रच के सैड होइए, एंग्जाइटी हो रही है तो रच के एंग्शियस हो जाइए, बताइए, कीजिए जो आपको कहना है, खेलिए जिस तरह खेलना है, मगर दूसरे के ऊपर वॉक ओवर करना इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द प्ले. प्ले इज़ कैन ओनली हैपन when we are safe, and play is the first institution and ability to love. और जब हम सेफ होते हैं और जब हम प्ले करते हैं तब हमारे अंदर एक खुशी पैदा होती है, एक जॉय पैदा होता है. There's a difference between happiness and joy. Happiness हमेशा बाहर की चीज़ों से मिलती है. कपड़े खरीद लिए,
अच्छा खाना खा लिया, मूवी देख ली, कोई वैलिडेशन मिल गई, कोई गाड़ी ले ली, कोई घर बना लिया, बाहर घूमने चले गए, हैप्पी, थोड़ी देर हैप्पी हुए फिर चले गए, लेकिन जॉय का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है. इट्स विद इन अस एंड कैन ओनली हैपन व्हेन आई am safe. I feel safe within me. I can play. I can be who I am. I can be vulnerable. Vulnerability की definition ये है उन लोगों के लिए जिनको शायद पीछे बच्चों को ना पता हो कि मैं अपने आप को expose कर सकती हूँ ये जानते हुए भी कि मुझे judge किया जा सकता है. Can I still be vulnerable? That's what the child is. That's what the love is. तमाम लोग हिस्ट्री में जिनको आप मोहब्बत के जो है टूम पे रखते हैं, समिट पे रखते हैं, वो तमाम लोग वल्नरेबल थे. उनकी क्वालिटी एक थी कि वो वल्नरेबल थे. एंड देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्ले? यू नो, व्हाट इज प्ले फॉर यू? आपके लिए प्ले क्या है? यू नो, एंड दे से, सो आई वुड लाइक टू आस्क पीपल सिटिंग हियर जिनके हाथ में कागज़ और पेन भी था, कोई नोट पैड भी था, जिन्होंने कुछ लिखा था, कि आपके लिए प्ले क्या है? What is play for you? When did you last time felt कि it was such a playful activity? Anybody? Dr. Nasser, you've been quite playful. Yes. When you felt that you were truly playful? Great, great. If you feel, can you tell your audience कि वो रेसिपी क्या है आपकी जिसमें आप हमेशा प्लेफुल रहते हैं? वो रेसिपी सिर्फ एक है, ये ज़िंदगी मुख्तसर है और इस मुख्तसर से वक्त में मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ. I always go whatever I feel that will make me happy. I sing songs, I dance, I love psychiatry, I practice it, I cherish those moments. I never memorize my patients. I'm there for them wholeheartedly. Once they are gone, wiped off. I never ever try to remember what I have done with my patients. I teach, I learn, that's the best thing. And I love nature, I love beauty. अक्सर मेरे पे बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, कोई खूबसूरत चीज़ देखूं चाहे वो औरत ही क्यों ना हो, मैं तारीफ ज़रूर करता हूं. जैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं. And I love it. Why not? Thank you very much. Dr. Anil. Yes. थैंक यू वेरी मच. मैं आई वुड सेकंड टू डॉक्टर नसर सईद. उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, तो उसका एक वर्ड में मैं डिफाइन करूँगा. लिविंग इन द मोमेंट इज़ लाइक अ प्लेफुल एंजॉय. Do you do that? सो येस, इस वक्त भी हम बात कर रहे थे, आपकी बात भी सुन रहे थे और वी वर एंजॉइंग दैट थिंग. और सर को दूसरी बात को भी मैं जो है वो कहूँगा कि कोई भी अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ़ करना ज़रूरी है. मैं भी हमेशा एक ही जुमला कहता हूँ तारीफ़ में कोई भी हो, अच्छी तू सूरत तुझे संवरने की ज़रूरत क्या है. थैंक यू वेरी मच सर. Okay. Anyone else? प्रोफेसर नईमुल्लाह लगारी साहब. Yes, please. वो एक शेर था बहुत छोटे दिनों में सर, जब हम यंग थे, कि इस दुनिया में जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है. लेकिन ये बड़ी नाजुक बात है. मोहब्बत का फैलाव तो हम सब ने ही देखा है. मोहब्बत का एक सुकड़ाव भी होता है, और वो है जिसको फ्राइड ने ये कहा था कि जी साइकोएनालिटिक पैराडाइम में उसने ये कहा था कि द पर्सन whom we love the most we hate the most. कि ये जो एम्बिवेलेंट रिलेशनशिप है, एक तो मुझे कभी समझ नहीं आई कि आर दे इंटरचेंजेबल यानी फेसेस ऑफ द सेम काइंड. डॉक्टर नईम, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी. आप सिर्फ ये बताएंगे कि आप प्लेफुल कैसे होते हैं. हमें अभी फ्रॉइड नहीं सुनना. नहीं, दैट इज वेरी प्राइवेट. आई एम सॉरी. No, that's very important. That's important. अगर you are in love right now, right here, please tell us. You can. I can tell you later. Okay. Anyone else from behind? ब्रिगेडियर शोएब साहब. वो तो हर वक्त प्लेफुल रहते हैं, उनको छोड़ दे. ये हर वक्त प्लेफुल रहते हैं. नहीं, आपने पूछा था कि लास्ट टाइम आप कब प्लेफुल थे, तो परसों था. जीशान साहब.
I think living in the moment, and which I do and try to do. Okay. Right now you think you're playful? Yes. Great, great. कोई पीछे Last- इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे पूछे. I think last but not the least, Dule Raja. Who is Dule Raj? Oh, okay. I'm sorry about this. कुछ कहना लकाब. चाहिए, कुछ कहना चाहिए. आप तो बहुत प्लेफुल होने चाहिए because you're doing everything right in the moment, here, now. I think that's enough of आपका playfulness. टैटू बहुत खूबसूरत है. ये Thank thank you you. very much. दूसरा बंदा है, आप पहले थे. Yeah. So, I think the first and the very important ingredient of being in love is to be honest to yourself, is to be truthful. जी जी. राणा साहब तो एंड में कमेंट करेंगे ना. किस चीज़ के ऊपर कमेंट करना है? पता नहीं वो कह रहे हैं किस चीज पे कमेंट करना. आई हैव नो क्लू अबाउट दैट. सर आपने सुना नहीं मुझसे? प्लेफुलनेस. उसको आगे बढ़ा दें. प्लेफुलनेस. देखिए मेरी नज़र में तो मोहब्बत बुनियादी तौर पर एक बॉन्ड का नाम है जो दो लोगों को मुकम्मल करती है. हर शख्स दुनिया में जो तन्हा है वो तन्हाई के लम्हे में गैर महसूस तरीक़े से अपने आप को अधूरा महसूस करता है, और उस अधूरेपन को हटाने में जो एनर्जी या लिंक, जो भी आप उसे नाम देना चाहें, वो कंप्लीट करता है अपने आप को किसी दूसरे शख्स तक जाने के लिए. वो शख्स भी हो सकता है, कोई और कॉज भी हो सकता है, कोई जज्बा भी हो सकता है. वो उसका रिश्ता किसी और से जब जुड़ता है तो वो अपने आप को कंप्लीट महसूस करता है, और ये जो बॉन्ड है इसका नाम मोहब्बत है. I agree to you, but I also taking a courage to disagree also, because I really want to say कि कोई इंसान है या नहीं है, नेचर है, वो अलाइव है, नॉन ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो अलाइव नॉन ह्यूमन बीइंग्स हैं, एंड मोर देन ह्यूमन अलाइव हमारे पास एलिमेंट्स हैं. अगर हम उनसे सीख कर अपने से कनेक्ट हो जाएं, अपने से वो काला अंधेरा जो हमारी वांट है, जो हुक है, जिसका जिक्र बहुत ज़्यादा डॉक्टर लगारी ने भी किया, अगर हम उससे कनेक्ट होना शुरू हो जाएं तो वैलिडेशन, ये जो हुक है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और हम अपने में मुकम्मल होने लग जाएंगे. एक खुदा हमारे अंदर जाग जाएगा, एंड दैट इज़ द अल्टीमेट लव विच इवेंचुअली what people who we talk about, Baba Farid or Lateef Bhittai or Rumi and all of them going, the stimulus इंसान था, किसी के पास माशूक चला गया, किसी का आ गया, किसी का कुछ हो गया, लेकिन eventually all the queens, जो हमने कहा मारवी और सस्सी और पन्नू, अगर हम उनकी कहानी सुने तो वो ढूंढते ढूंढते अपनी मोहब्बत को वो खुद से मोहब्बत करने लग गई और कंप्लीट हो गई. एंड आई थिंक दैट्स what is very important, and being honest is very important. और इसमें एक शेर है कि बस ये वो कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है, अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकती. Thank you. So in the end I would like to end with John Lennon. He says it matters not who you love, where you love, why you love. When you love or how you love, it matters only that you love whoever, wherever, which means stand in front of the mirror and love yourself is also enough. Thank you very much.